Dear students, today our topic is imbibition. What's imbibition? Imbibition is a process wherein water is adsorbed by a substance without forming a solution, and this leads to enormous increase in the volume of the substance. Now, the substance which adsorbs the water is known as imbibant. Is known as imbibant. The substance which adsorbs the water is known as imbibant, and the solvent which is adsorbed is known as imbibate. Imbibate. So two terms are used here, imbibant and imbibate. We will also try to explain it with the help of an example. We'll try to understand it with the help of an example. Now I have an example here. This is a glass of water and I have put seeds into it. Now I'll place the glass as such for some time, and let's see, after 2 hours or 3 hours you will see the seeds are swollen. The volume of the seeds, it has increased enormously. This is known as imbibition. The seeds have adsorbed the water. Adsorb means they have they are now attached to the surface of the seeds by adhesion. So they have not formed any solution. It is just a process of adsorption. So this imbibition, it may be defined as the adsorption of water molecules by any substance, by any hydrophilic colloid. Hydrophilic means water loving. So seeds have absorbed the water, adsorbed the water. The water is adsorbed by seeds. So seeds will be known as, seed will call them as imbibant, and water is adsorbed. So it will is known as imbibate. Water will be called as imbibate, and the seeds which absorb the water will be called as imbibant. So seed is an imbibant and water is imbibate. Now here again I will show you another example. During seed germination, the seeds adsorb the water. They adsorb the water, which leads to increase in the volume of the seed, and then ultimately the outer covering of the seed, that's known as testa. It the testa, it bursts and seed germinates. So this imbibition imbibition is the first step in the germination of the seeds. I will revise it again. Imbibition क्या है? Imbibition एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक सब्सटेंस वाटर एब्जॉर्ब करता है, ना कि एब्जॉर्ब. एब्जॉर्ब में वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो एक सब्सटेंस के साथ अटैच होते हैं थ्रू एडिशन. एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उससे वो उस सरफेस के साथ अटैच हो जाते हैं. तो इस प्रोसेस को हम इम्बाइब्शन कहते हैं. इम्बाइब्शन में क्या होता है, दो चीजें होती हैं. एक वो चीज जो कि वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने सीड्स डाले थे वाटर में, तो सीड्स ने वाटर को एब्जॉर्ब किया, तो सीड्स को हम इम्बाइबेंट कहेंगे. और जो वाटर है जो कि एब्जॉर्ब हो गया, तो उसको हम कहेंगे इम्बाइबेट. लेट्स मूव अहेड. नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इम्बाइबिशन? Water potential of imbibant is negative. Water has the highest water potential, that is 0. तो water potential of pure water is always 0. और जो imbibant होता है उसकी नेगेटिव, और उसकी नेगेटिव होनी ही चाहिए for this imbibition to work, because water moves from
हायर वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। इम्बाइबिशन में क्या होता है कि वाटर जो होता है इट मूव्स फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल दैट इज 0 टू लो वाटर पोटेंशियल दैट्स नेगेटिव। सो इम्बाइबेंट जो होता है उसकी वाटर पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होती है, और जो वाटर है उस प्योर वाटर है उसका वाटर पोटेंशियल 0 होता है। दैट enables the process of imbibition. During imbibition the volume of imbibant increases. तो इम्बाइबिशन के दौरान जो वॉल्यूम होता है इम्बाइबेंट का वो इंक्रीज होता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, सोकड सीड जब हम लाते हैं और ड्राई सीड जब लाते हैं, सोकड सीड्स का जो वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ इम्बाइबिशन। इस तरह से अगर आप वुड डालोगे इसमें पानी में, यू सी इट इज वॉल्यूम इंक्रीज। यहाँ आप देखोगे डोर्स एंड विंडोज ड्यूरिंग रेनी सीजन वो बंद नहीं होते हैं, या बंद होते हैं फिर हम इन्हें खोल नहीं पाते हैं बिकॉज इट इज बिकॉज ऑफ द इम्बाइबिशन ऑफ द वाटर। तो उससे वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद when a dry imbibant comes in contact with water a steep water potential gradient is created. Water diffuses from the higher water potential to the imbibant. तो जैसे मैंने पहले ही बोला कि अगर हम वाटर लेते हैं, इफ वी हैव दिस इज वाटर, तो वाटर का जो वाटर पोटेंशियल है इट विल बी 0, और जो इम्बाइबेंट होता है उसका जो वाटर पोटेंशियल है वो नेगेटिव होता है, लेट्स से -3। नाउ when imbibant and imbibate, this is the water is imbibate, or this for example this wood it is imbibant। तो इन दोनों के दरमियान जब ये कांटेक्ट में आते हैं देयर इज स्टीप, देयर इज शार्प वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -3 है, सो वाटर विल मूव फ्रॉम इट्स हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। तो ये वाटर पोटेंशियल होना इम्बाइबिशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और यूं ही ये इम्बाइबिशन हो जाती है, यूं ही व्हेन इम्बाइबिशन टेक्स प्लेस एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन के दौरान हमेशा आप देखोगे एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट, और इसको हम कहते हैं हीट ऑफ वेटिंग, हीट ऑफ वेटिंग। Another important point, imbibant holds the imbibed by adsorption। तो यहाँ पे कोई absorption नहीं होती है, यहाँ पे adsorption होती है। तो adsorption क्या है? it is an attractive force between the two substances। एक attractive force है दो सब्सटेंस के दरमियान। यहाँ पे सोल्यूशन नहीं बनता है एज इन केस ऑफ अदर। अगर आप साल्ट डालोगे पानी में a solution will be formed, मगर अगर आप वुड डालोगे किसमें, पानी में, solution will not be formed। So during imbibition no solution is formed. Now what are the factors affecting imbibition? इम्बाइबिशन में पे कौन से चीज़ों से असर पड़ता है? फर्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना आप इंक्रीज करोगे उतना इम्बाइबिशन इंक्रीज होगा, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है वाटर मॉलिक्यूल्स की वो इंक्रीज हो जाता है। पीएच ऑफ द मीडियम, तो पीएच ऑफ द मीडियम जो है वो भी इफेक्ट करता है किसको, इम्बाइबिशन को। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं सीड्स, यहाँ हम लेते हैं प्लांट सेल के बाहर सेल्यूलोस है, तो सेल्यूलोस इज नेगेटिवली चार्ज्ड, सो इट विल एब्जॉर्ब इन द अल्कलाइन मीडियम। तो ये डिपेंड करता है जो इम्बाइबेंट है उस इम्बाइबेंट का चार्ज क्या है, तो उस हिसाब से पीएच भी इफेक्ट करता है। नाउ द टेक्सचर ऑफ इम्बाइबेंट, इम्बाइबेंट का टेक्सचर कैसा है वो भी इफेक्ट करता है इम्बाइबिशन के लिए। उसके बाद एफिनिटी ऑफ द इम्बाइबेंट फॉर द इम्बाइबीट। अब इफ एफिनिटी क्या है, कुछ सब्सटेंस हैं वो किसी खास तरह का सॉल्वेंट इम्बाइब करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल तेल भी कोई अगर फॉर एग्जांपल वाटर में हम कोई चीज़ डालते हैं तो वाटर को इम्बाइब करता है, लेकिन अगर उसको हम किसी और सॉल्वेंट में डालेंगे तो उसमें वो इम्बाइब नहीं करेगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन द इम्बाइबेंट एंड द इम्बाइबीट, उनके दरमियान एफिनिटी है कि नहीं है। तो दीज पॉइंट्स दे ऑलवेज इफेक्ट द इम्बाइबिशन।
Now, what is the significance of imbibition? Imbibition की क्या importance है plants में? तो मैंने जैसे पहली स्लाइड में भी बताया कि imbibition is the first step of water absorption. जो first step है water absorption from the soil, it is adsorption. Water molecules get attached to the root hairs by adsorption, by imbibition. तो जब imbibition होती है उसके बाद cells के अंदर पानी चला जाता है. Then it is first step in the germination of the seeds. जब seeds germinate होती है तो पहला स्टेप यह है कि उनकी जो आउटर कवरिंग है जिसको कि हम टेस्टा कहते हैं वो बर्स्ट होना चाहिए, तभी अंदर से एम्ब्रियो बाहर आएगा. तो वो टेस्टा जो है वो बर्स्ट होता है बिकॉज इट इम्बाइब्स वाटर, इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस. और जब वो बर्स्ट होता है उसके बाद वहां से एम्ब्रियो बाहर आ जाता है, प्लांट लेड जो है वो बाहर आ जाता है. इट कीप सेल्स मॉइस्ट. सेल्स जो है बाहर से मॉइस्ट रहते हैं. कैसे? जब उनका सेल वॉल इम्बाइब करता है वाटर. The water moves into ovules which are ripening into seeds by imbibition. जो ripening seeds होती है ओव्यूल के अंदर, उनको चाहिए क्या? चाहिए उनको पानी चाहिए टू राइपन. और वाटर जो अंदर जाता है ओव्यूल्स के अंदर, इट गोज इनसाइड the ovules by the process of imbibition. Thank you very much.